Hello guys, good afternoon. We are having previous year question paper series on civil services prelims regarding economy, and here the topic is public finance. Now in this topic, whatever the questions UPSC asked in the last 10 years, that is 2011 to 2021, we are having those questions here. So see the first question: which of the following is not a feature of a value added tax? Which of the following is not a feature of value added tax? Okay, it is a multi-point destination based system of taxation. Good, right? It is a tax levied on value addition at each stage of transaction. That is also correct, because it is a tax levied at each transaction or each stage of transaction. Tax on final consumption of goods or services and must ultimately be borne by consumer. Okay, it is basically subject of the central government. Now VAT is not a subject of a central government, right? So statement D is wrong, that is it is not a feature of a VAT. We have been asked that, and state government are merely facilitation of its successful implementation. No, it's wrong, because VAT is a feature or VAT is a subject of a state government. That is why recently the Prime Minister said that the state governments also should think about the VAT. Now see, this is the question asked in 2011. Most of the candidate asks, sir, do UPSC repeat the question? Yes, UPSC do repeat the questions from previous year questions. One thing. Second thing, even if UPSC doesn't repeat the question, it repeats the topic. Now what is the topic asked in 2011? But UPSC might ask this topic again, because in this year particularly, twice it happened that the Prime Minister directed at state government that they should decrease their VAT at state level. State should cooperate to the center as far as fuel prices are concerned. That was why it was in the news. So the question might come there. Here you were asked that which is not a feature of a VAT, and the answer lies in question number D, option number D, that is VAT is not it is the central government. No, it is not subject of central government. So that is why answer is D. We have been asked that, not a feature. So D is not a feature. That's all. Second, which of the following statement appropriately describe fiscal stimulus? We have been asked about fiscal stimulus. Now fiscal stimulus is nothing but giving boost to the economy. It's very simple concept. Whenever the economy is in a recession, or whenever economy is having or facing difficulties, then the fiscal stimulus is the positive action or affirmative action by the government of India to boost the economy. And here if you read, it is a massive investment by government in manufacturing sector. Okay, it is not only about manufacturing sector. It is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country. Yes, it is true. No need to read other options also, but if you read it, it is government's intensive action, financial institutions to ensure disbursement of loans. Second, last one is it is an extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial inclusion. इसका कोई financial inclusion से कोई मतलब नहीं है, ये अपने अपने अलग एक टर्म है fiscal stimulus. Fiscal stimulus का मतलब है to boost the economic activity of the country. That's all. These are the concept based question or question based on concepts or terminologies. There are certain terminologies in economics which are quite in the news frequently. In newspaper, even if you read the newspaper, they have given in double inverted comma a particular term, and that term is asked normally in the UPSC preliminary examination. So here is the second answer, that is fiscal stimulus is nothing but intense affirmative action by the government to boost the economic activity of the country. Next question. In India, deficit financing is used for what? Deficit financing, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर आप पब्लिक फाइनेंस को ठीक तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसकी जरूरत होती है. व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज दैट गवर्नमेंट deliberately what does it do? That we have suppose estimated income and estimated expenditure. So government of India deliberately shows that estimated expenditure is greater than that of the estimated income. The reason is simple, that we want to boost our economic development, and for that purpose we do deficit financing. So this deficit, suppose 100 rupees is income
and 140 rupees is expenditure, estimated expenditure, then the deficit is of 40 rupees. Now this deficit is financed by having or by borrowing loans from the market, and the government does it for boosting or speed up the economic development process. So the answer was quite simple. Next, with reference to union budget, which of the following is or are covered under non-planned expenditure? Planned expenditure and non-planned expenditure. The name itself suggests that the expenditure which is done on the non-planned activities called as the non-planned expenditure. So defense expenditure, yes, obviously we don't have planning for it. Suddenly situation arises like war like situation and all those things, so that comes under it. Interest payment, yes, it is also there. Salaries and pensions, it is also non-planned expenditure. Subsidies are also non-planned expenditure, and hence if you go by this, you'll get the answer, that is 1, 2, 3, 4, all are nothing but the non-planned expenditure. Two types of expenditure, planned expenditure and non-planned. Government on its central public sector scheme or central scheme or central sector scheme, all expenditure regarding it comes under planned expenditure. Next, सेल टैक्स यू पे वाइल परचेसिंग टूथपेस्ट. ओके, सेल टैक्स. अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में. अब आपको पता है 2017 में जीएसटी का स्ट्रक्चर आ गया तो सब्ज्यूमिंग ऑफ टैक्सेस हो गया. तो ये बात है 14 की, तो उस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पहला ही गलत है. जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट दिखा है वो गलत है, तो दोनों ऑप्शन आपके वैसे भी एलिमिनेट हो गए बिकॉज इट वाज अर्लियर स्टेट सब्जेक्ट एक्चुअली. नाउ टैक्स इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Tax imposed and collected by state government. Yes, both imposition of the tax and collection of the tax was the responsibility of the state government of a sale tax. So here answer is option number D. Now next, with reference to 14th Finance Commission. 14th Finance Commission के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको देखना है कौन से सही है गलत है. First, it has increased the share of state in the central divisible pool from 32% to 42%. Yes, correct. बढ़ाया गया था 10% से, अर्लियर वो 32 था. जो 13th फाइनेंस कमीशन था, 13th फाइनेंस कमीशन, तो इसमें जो विजय केड़कर वाज द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन एंड 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वाईवी रेड्डी. तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हमको. आज की तारीख में अगर आपको देखना है तो 15th फाइनेंस कमीशन को ठीक तरह से देखो. मेजर रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन इज एनकेसिंग. तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या है? फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. क्वासी जुडिशियल बॉडी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वासी जुडिशियल बॉडी? It means that half judicial. It gives advice to the government, which is obviously not binding on the government. Why will government appoint a body whose recommendations will be binding on the government itself? Definitely, it will not. So first statement is correct. ये 42% तक बढ़ाया गया था. It has made recommendation concerning sector specific grant. No, ऐसा कुछ नहीं था इसमें. तो answer here is only 1A only. That is 1 only. Next. There has been a persistent deficit budget year after year. Deficit budget वो वही बजट फाइनेंसिंग वाली या फाइनेंसिंग डिफिसिट वाली बात पिछले क्वेश्चन में हमने छेड़ी थी. Which of the following actions can be taken by government to reduce deficit? तो डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शन लेगी देखते हैं हम. क्या है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छी बात है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो तो तब भी जाके आपका डेफिसिट बजट कम हो जाएगा. इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, नहीं, इससे तो और बढ़ेगा. तो नए वेलफेयर स्कीम आप ला रहे हो और पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसा मतलब और बोरोइंग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से इससे क्या हो जाएगा? डेफिसिट बजट और बढ़ता जाएगा. तो सेकंड नहीं है. अगर आपका सेकंड नहीं है तो आप देखो, सेकंड नहीं है तो दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो गए. आप कितने भी होशियार हो, आपको ऐसे समय पे एक बार आप श्योर हो जाए कि सेकंड नहीं है तो आप एलिमिनेशन को जाओ, तो उससे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगी. नाउ थर्ड देखो, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज. यस, इट इज करेक्ट. सब्सिडीज को रैशनलाइज करो, बंद नहीं करना है. सब्सिडी को रैशनलाइज करो मतलब क्या है कि लीकेज वगैरह ना हो, इसको इंश्योर करो. एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज से भी दिक्कत बढ़ेगी, इससे भी पैसा लगेगा और
और पैसा लगेगा मतलब डेफिसिट बजट और बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है फोर्थ नहीं है। एंड हियर फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ का भी एक ही ऑप्शन में था वो वैसे भी, तो आंसर इज 1 and 3 ओनली। दैट्स ऑल फॉर बजट डेफिसिट के क्या एक्शंस लिए जाएंगे जिसके तहत डेफिसिट बजट को कम किया जाएगा। Which of the following are included in the capital budget? कैपिटल बजट में क्या क्या आएगा? ओके, एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट की बात चल रही है, तो बड़ा पैसा लगेगा तो कैपिटल बजट में आ जाएगा। लोन्स, जब भी जितने भी लोन्स आएंगे हमेशा वो कैपिटल बजट का पार्ट होते हैं। सो ऑब्वियसली 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर। गॉट, यू शुड नो ओनली व्हाट इज कैपिटल बजट, ये पता होना चाहिए आपको कि किसको कैपिटल बजट बोलते हैं। तो बड़ी रकम जहां पर लगाई जाती है, ज्यादा पैसा जहां पे खर्च होता है, तो उसको हम कैपिटल बजट कहते हैं। With reference to Financial Stability and Development Council, consider the following statement. Okay, it is an organ of नीति आयोग, बिल्कुल नहीं है, अलग लेवल का एक सिस्टम है। नीति आयोग का इससे कुछ मतलब नहीं है, तो नहीं है मतलब तो इसका मतलब आपके दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब रहे बाकी दो, इनमें से भी एक इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ऑप्शन में 3 कॉमन है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट राइट ही राइट है। आपको पता हो या ना पता हो, वो राइट ही है, एलिमिनेशन के बाद पता चलता है। अब रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, हमको देखना, इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यस इट इज ट्रू, एंड सो द आंसर इज सी, दैट इज 2 and 3। इसको बनाया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को, ताकि मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन जो है इकोनॉमी का, उसको देखा जाएगा, उसके तहत ये पर्पस था। विथ रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये पूछा क्यों गया था, 2017 में ये सवाल आ गया है, तो आपको शायद याद होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 में, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जिनके पास भी बेनामी प्रॉपर्टी है, कोई दिल्ली में रह रहा है, उसकी गोवा में प्रॉपर्टी है, इसके बारे में उनका एक स्पीच था, शायद आपने सुना होगा। तो यूपीएससी को स्पीच में इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने पॉइंट आउट किस चीज को किया था, तो बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी को पॉइंट आउट किया था। तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन केम ऑन दैट टॉपिक। So let us see the statement, what were the questions or what were the statement. A property transaction is not treated as a Benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction. तो ये क्या बात हो गई, तो इसका मतलब मैं कल कहूंगा कि देखो भाई मेरी प्रॉपर्टी बेनामी है पर मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट गलत है, जाओ एलिमिनेशन को। अब रहा दो ऑप्शन हमारे पास रहे, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है, दोनों में एक चीज कॉमन है, सेकंड इज करेक्ट। ओके, पढ़ते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट को। प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर हेल्ड लायबल फॉर कॉन्स्पिकेशन बाय द गवर्नमेंट, यस, तभी तो मजा है ना, वरना क्या है कि कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर मतलब ही नहीं बनता उस एक्ट का कोई। तो जो भी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को लगा कि ये बेनामी प्रॉपर्टी, उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 ऑथोरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म, ये नहीं होता है भाई। देखो हमने पिछली बार भी कहा था कि कोई एक्सट्रीम वर्ड आ गया, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म, ऐसी कोई बात होती है? हर एक को चांस मिलता है, आपको कोर्ट में जाने का चांस मिलेगा, वो कोर्ट प्रूव करेगा आपकी प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं है, पर ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर आपको मिल गया, दैट इज 2 ओनली। अभी कोई एकदम कॉमन सेंस अप्लाई करो, ऐसे क्वेश्चन में कोई आपको बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को ठीक तरह से पढ़ो। कोई भी बंदा बोल सकता है कि बेनामी प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो बोलेगा कि ये मेरे को कुछ पता नहीं था, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। तो उससे भी आपको पता चलेगा आंसर कहाँ से आना है या कैसे आता है। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी पूछा गया था, 2017 में ही आया था जीएसटी, तो जाहिर सी बात है उस पर सवाल आने वाला था। अब देखो कैसे स्टेटमेंट है, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल जस्ट क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। ओके, बहुत सीधा स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कठिनाई नहीं है, सीधा लग रहा है, सिंपल है, करेक्ट है। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कहा की बात हो गई, ड्रास्टिकली रिड्यूस, मैंने पहले भी कहा है, ऐसे शब्दों पर ध्यान दे दो, तो ऐसा नहीं होगा भाई, धीरे धीरे होगा, ऐसे अचानक ड्रास्टिकली कुछ नहीं होता है, तो ये गलत है। सेकंड गलत है, तो मतलब देखो आ गए आप 50% पे, और अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप 50% ऑप्शंस पे आ जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में,
तो वैसे भी आप बहुत अच्छी कंपटीशन में होते हैं, तो पहले वो काम करो। अब देखो यहाँ पे ये तो अपने आप स्टेटमेंट 1 अपने आप में सही है, हमें कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो आप, इट विल रिप्लेस, यस करेक्ट। थर्ड, इट विल इनॉर्मलसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी, भाई बढ़ेगी ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनॉर्मलसली इंक्रीज ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये भी गलत है। ऐसे शब्द जो है, ऐसे वर्ड जो है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स, these are called as extreme words, and in any preliminary examination if extreme words have been used in a given statement, the chances of the statement being wrong is absolutely high, and that is why third statement is also wrong. Answer is 1 only. Next question, consider the following statement, tax revenue as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade. इसमें फ्लक्चुएशन है, पूरे डिकेड में बोला है इन्होंने, तो स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ, कभी थोड़ा कम हुआ है कभी बढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज, यहाँ पे भी वही बात है, कुछ 1-2 साल ऐसे बीच में है जहां पे वो डिक्रीज हुआ है, तो स्टेडीली इंक्रीज जो है ये भी गलत है, एंड आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2। ये ऐसा एक आध क्वेश्चन होता है यूपीएससी में, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे उठाओ, कोई तुक्का वगैरह लगाने की कोशिश मत करो यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका बैड लक है तो फालतू में आपको ज्यादा नुकसान वहां पे हो जाता है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड दैट अ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 60% of the general government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government। आम तौर पे इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट जब आते हैं उसमें भी कुछ नंबरिंग का यूज किया है, डेटा का यूज किया है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। रुको, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये हमेशा सही होगा, ऐसे नहीं है, पर आपको रिस्क उठानी है, तो ऐसे स्टेटमेंट कौन इतना रट्टा मारेगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई भी टीचर उसका होमवर्क करके आपको एक्सप्लेन करेगा। मेरा मानना है ऐसे क्वेश्चन को वहां पे दिमाग लगा के सॉल्व करो, उसकी आदत पहले से ही बनाओ घर पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी, ओके, देन एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गो, ये थोड़ा सा क्रॉस दिया है, वाइस वर्सा है, ये 49% यहाँ पे होना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट का 21% होना चाहिए था, तो ये गलत है। एंड सेकंड गलत है, तो आप चाहोगे तो आप आओगे 50-50 तक आएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि पहला स्टेटमेंट तो हमेशा राइट होता है, ऐसे केस में है वो राइट, क्योंकि लंबा स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा वहां पे एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। थर्ड, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फार्मर ओवेज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ये तो मैंडेटरी है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोन नहीं उठा सकता। आंसर हियर इज 1 and 3 only, second is wrong. With reference to India's decision to levy an equalization tax, ये चर्चा में था उस साल 2017-18 में, 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। तो पहली तो बात यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स है, डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स, ओके, इसके बारे में दिया गया है हमें, इक्वलाइजेशन लेवी ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, बिल्कुल नहीं, ये अलग लेवल का उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको इनकम टैक्स का पार्ट वो नहीं है, तो नहीं है तो मतलब गए 50-50 आ गए आप, या तो सेकंड बराबर है या फिर नाइदर 1 नॉर 2। अब सेकंड को पढ़ेंगे हम। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्रीज अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, नहीं क्लेम कर सकते वो, उनके यहाँ पे भी वो टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, तो ये गलत है स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ आंसर हियर इज नाइदर 1 नॉर 2। करंट अफेयर्स रिलेटेड इकोनॉमी, दिस इज, ये क्वेश्चन कोई उस साल कोई चर्चा में कोई टैक्स रहा है, कोई बात रही है, तो उस पर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। Consider the following items: cereal grains sold, chicken eggs cooked, fish processed, canned, newspapers containing advertisement। इनमें से कौन कौन सी चीजें exempted अंडर जीएसटी है? ये देखो, इस प्रोटीन वाली चीजें है सारी,
इन पर जीएसटी लगाओगे तो लोगों को वैसे भी वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वगैरह ये सब कैसे करेंगे, लॉजिक अप्लाई करो। और इस लॉजिक के तहत आप जाओगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 तो आना ही आना है। अब 4 आपको पता हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, 1 2 3 वाला एक ही ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या करना है आपको, सीरियल, ग्रेन्स, हुड, चिकन, एग्स, कुक्ड फिश, प्रोसेस्ड एंड कैंट्स एंड न्यूज़पेपर कंटेनिंग, तो सारे के सारे एग्जाम्प्ट किए हैं जीएसटी के अंडर। तो रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अपने आप में आ जाएगा। दिमाग ये था यहाँ पे कि इनमें सब में देखो प्रोटीन्स है। अब भारत जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इतना फाइट कर रहा है, इतना पीछे है, तो हमें प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है। और वैसे भी इतने हालत खराब है और उनमें से फिर उस पर भी जीएसटी लगाओ तो कैसे चलेगा। तो ये लॉजिक अप्लाई करना है और इस लॉजिक के तहत ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड टू फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, कोई कमोडिटी कुछ लोगों को फ्री में अगर दी जाती है तो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट इज इग्नोर्ड, ऐसा भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, यस, ये टैक्स पेइंग पब्लिक पर ही उसका बर्डन जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। एंड दैट इज व्हाई आंसर इज सी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है या फिर कोई कमोडिटी है वो फ्री देने का मतलब क्या होता है, राइट। तो ये यहाँ पे कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट कोई बेयर नहीं करता, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा पैसा? तो हमारी गलत धारणा होती है गवर्नमेंट हमें पैसा देता है। टैक्स पेयर का ही मनी टैक्स पेयर हमको मिलता है या फिर सब्सिडीज वगैरह जो दी जाती है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन, अगर मान लो कि कोई एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है in the near future, which of the following actions are likely to give some immunity to India? कौन से हम कदम उठाएंगे? Not depending on short term foreign borrowings, opening up of more foreign banks, इसका क्या मतलब है? फॉरेन बैंक्स उठा के क्या करेंगे हम? So ये नहीं आएगा सेकंड। अब देखो वही फिर फंडा हमारा, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। मेंटेनिंग फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी बिल्कुल नहीं, इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो थर्ड भी गलत है। फर्स्ट, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, कोई और कदम उठाओ जिसके तहत आप आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, ये इससे तो और आप डीपनिंग ऑफ क्राइसिस ज्यादा बढ़ता जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, के तहत या समय पे क्या किया जाएगा? तो पहले तो इकोनॉमिक रिसेशन क्या है इसको आप समझो। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब ऐसे हालात होते हैं जब इकोनॉमी बहुत डल चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, जॉब्स लोगों को मिल नहीं रहे, ऐसे हालात में क्या किया जाएगा? कट इन द टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, ओके, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, रिडक्शन नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाना पड़ेगा मतलब क्या? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, पैसा मार्केट में डालोगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डालोगे तभी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी या इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पीड अप हो जाएगी। तो ये टैक्स रेट वगैरह करके कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, पब्लिक प्रोजेक्ट या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, तभी जाके इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। नेक्स्ट, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government? Black money, which is also called as the parallel money, what does it do actually? I mean, यहाँ पे पूछा गया है which one of the following effects of creation of black money has been the main cause of worry. main cause of worry क्या है? ब्लैक मनी की वजह से क्या दिक्कत आ रही है देखते हैं हम। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेस ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो ब्लैक मनी का एक जरिया है जहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेस ऑफ प्रेशियस स्टोन वगैरह, ये गवर्नमेंट की कॉज ऑफ वरी नहीं है, क्योंकि ये देखना है कि कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी कोई बात नहीं, ये लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। ब्लैक मनी मीन्स व्हाट? अनअकाउंटेड मनी, तो उस पैसे का हिसाब नहीं, उसका कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है गवर्नमेंट को। टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेड हो रहा है, अनअकाउंटेड मनी है, टैक्स इवेड करके लोग पैसा कमा रहे हैं, उसी को तो हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए मतलब कॉज ऑफ वरी है। सो द आंसर हियर इज डी। ये तो पिछले साल में पूछा गया था ये सवाल। तो ऐसे आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। पब्लिक फाइनेंस में आपका आ जाता है, बजट आता है या फिर आपके टैक्सेशन आते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, FRBM एक्ट,
ये सारे हॉट टॉपिक्स है जहां पे आपको फोकस करना है, ताकि 5 जून की जो प्रीलिम्स है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से फेस कर सकोगे. So thank you so much guys. We are from Infinity Academy here regarding IAS examination. For if you have any query, please call on these numbers, the numbers on the screen. If you have any difficulty, if you have difficulty regarding the courses, regarding the what action should be taken or what should be the action plan for the upcoming 1 year, you can call here. Thank you so much.